सत श्रीकाल, मैं गगनजीत सिंह आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। मैंने लास्ट टाइम आपसे डिस्कशन की थी ट्राइनिटी ग्रुप की जर्नी के बारे में। उनकी वीडियोस आप ऑलरेडी हमारे चैनल पर देख रहे हैं। आज हम बैठे हैं ट्राइनिटी ग्रुप के ऑनर मिस्टर गर्ग के साथ, और गर्ग साहब हमें अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे। ये ऑलरेडी मल्टीपल वेंचर्स में इन्वॉल्व हैं, जैसे कि लैंड बैंकिंग, लॉजिस्टिक के बिजनेस में, विलाज हिमाचल में, और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं इनके। राइस मिल्स हैं कुराली में, बहुत टाइम से कुराली में ही अपना बिजनेस चला रहे हैं ये। गर्ग साहब, आप ट्राइनिटी ग्रुप के बारे में ज़रूर बताएं, जो हमारी कुराली में साइट आ रही है ट्राइनिटी की। बिल्कुल गगन जी, ट्राइनिटी ग्रुप, इससे भी पहले आई वुड लाइक टू टेल हाउ वी came to the idea of curating this group. Basically, we are a generation of land bankers. It's my third generation we are into land banking. तो लैंड का शौक है, लैंड ली ट्रेड की, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड महावास्तु गुरुकुल से है। महावास्तु की आचार्य की उपाधि मुझे मेरे माननीय गुरु डॉक्टर खुर्जी बंसल जी ने दी। तो हमारे यहाँ ज़मीन कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, हमारे लिए ज़मीन किसी पर्पस की पूर्ति के लिए साधन है। इट इज़ नॉट अ पीस ऑफ लैंड फॉर अस, इट इज़ अ इंस्ट्रूमेंट टू मैनिफेस्ट डिज़ायर। वो डिज़ायर बीइंग डेवलपर मेरी हो सकती है, वो बीइंग इन्वेस्टर की हो सकती है, और वो बीइंग एंड यूज़र जो उनको कंज्यूम करेंगे उनकी हो सकती है। तो वाइल सेलेक्टिंग लैंड फॉर मैनी ऑफ द क्लाइंट्स, फॉर मैनी ऑफ द पीपल क्रॉस कंट्री, तो we came to the idea that Mohali is still missing that purposeful development of lands. There is no doubt behind the fact that the growth at which Mohali is growing in real estate is 2x or 3x than the average at which the entire country is growing. And there are many reasons to it. Chandigarh, Mohali is the base to, we can say, 5 states, almost the entire north, Jammu Kashmir, Leh and Ladakh, Punjab, Haryana and Himachal. Chandigarh, although it's capital to 2 states, but it's the landing point for all these 5 states. So therein there are plenty of good lands, good chunks which are being developed. So the idea was, जो यहाँ का 100% अगर हम कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूशन रेशो देख लें तो 80% इज लुकिंग फॉर देयर फर्स्ट हाउस। यहाँ पे फर्स्ट हाउस की फाइट ज़्यादा है, एंड फर्स्ट हाउस कभी भी, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, किसी का लग्जरी 3-4 करोड़ का घर नहीं होता। उसकी जो अमाउंट है यहाँ पे वो 1 CR है जी, बीट इन द फ्लैट्स, बीट इन द रेजिडेंसेस। तो हमने प्लान किया क्यों ना यार एक बार जो 80% ये लोग हैं इनके लिए कुछ किया जाए। तो वी consolidated land bank in Kurali on the Bharatmala highway. It was very much in the policy that Bharatmala highway has to come there in Kurali. It will connect all these states which I have mentioned. So on the outskirts of Kurali, or maybe in the mid of Kurali now, we have consolidated a land patch of 30 plus acres, in which we are coming up with plotting. We are done with the approvals, layouts, and we are yet to come with the plotting, wherein we will implement all the Vedic principles of living. Vastu Shastra is one,
and many more such things, so that whosoever is involved with the project gets benefit out of it. Great. मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा अभी हमारा प्रोजेक्ट आज की डेट में किन अप्रूवल्स के ऊपर स्टैंड कर रहा है और कौन सी अप्रूवल्स हमारी आ चुकी हैं। Gavan ji, I would like to tell you the exact status of the project. Right now, we are done with the approvals, be it the CLU, be it the layout, and be it the LDC, that's license to develop colony. LDC is out for the first phase, and RERA can be out anytime soon. We have applied for the RERA, all the registries are 100% done. And regarding the development, land filling is going on, road work has started, boundary wall work has completed, site officers coming up. It has come up already, and we are yet to start the sales office over there. So full-fledged at war level development is going on for the first level of 18 acres, and that's it. ट्राइनिटी ग्रुप की ऑलरेडी 3 कनेक्टिविटीज हैं हाईवे के साथ और आई थिंक प्रोजेक्ट का नाम भी ट्राइनिटी है, तो ये कोइंसिडेंस था या जमीन ही आपने ऐसी परचेज की? ये बड़ा थॉटफुली क्रिएटेड था जी, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ट्राइनिटी में 3 का बड़ा इंपॉर्टेंस है, 3 का। तो द लैंड इज सराउंडेड बाय 3 नेशनल हाईवेज, and it is catering to Tri-City, it is catering to 3 states, Punjab, Himachal and J&K. So we have 3 national highways. One is the Bharatmala Expressway, which you mentioned earlier. It's coming directly from the airport and going towards New Chandigarh and later on Baddi. And the second one is the main Chandigarh-Manali highway, the national highway. And the third one is, we usually say Ludhiana Chandigarh highway via Morinda and Kurali. It's called Kurali Sisma highway. Some people say it Kurali New Chandigarh highway. So the land is between these 3 national highways. जैसा कि आपने साइट के बारे में बताई दिया, लोकेशंस, और हम मल्टीपल चीज़ें इसमें डिस्कशन करेंगे। वैसे भी कुराली सस्टेनेबल और क्लीन डेवलपमेंट के लिए जाना चाहता है, क्योंकि खरड़ हॉच पॉच है, लोग अब थोड़ा अवॉइड करते हैं वहाँ पे परचेज करने को। ठीक है, सारी चीज़ें परफेक्ट वे में कई बार नहीं भी हो पाती, बट कुराली में आई थिंक काफ़ी सारी डेवलपमेंट जो अच्छे पेस पे चल रही है। हम अपने प्रोजेक्ट में क्या ऐसी डेवलपमेंट या क्या ऐसा अलग करने जा रहे हैं जिससे कि हमारे जो परचेज करने वाले लोग होंगे या हमारे कस्टमर्स होंगे जिनको ये प्रोजेक्ट बिल्कुल एक्यूरेट एंड परफेक्ट लगे। गगन जी, बिल्कुल सही कहा आपने। कुराली इज नोन फॉर इट्स सस्टेनेबल एंड क्लीन डेवलपमेंट जी। और मैं अपनी वास्तु की लैंग्वेज में बताऊं तो कुराली का भूबल बहुत अच्छा है, भूमि का जो बल है जी। You will find almost all the builders who have worked in Kurali and all the projects in Kurali are very much successful. There are many good projects in Kurali and Kurali is the future. And regarding कि हम क्या ऐसा लेके आ रहे हैं, what we knew we are coming up, तो we are the first project to come up with the community hall clubhouse in the 100 to 150 size plotting. There has never been a community hall and clubhouse in such a plotting size, and also we are coming up with the mandir. There is an exclusive mandir there in the colony. ग्रेट, ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया आपने। तो मल्टीपल चीज़ों में हमने देखा है कि ये चीज़ें मिसिंग हो जाती है, कम्युनिटी हॉल, मंदिर। अब आपने शायद, मैं लास्ट टाइम आपसे डिस्कशन भी कर रहा था, आपने ग्राउंड्स और हमारे जो प्ले ग्राउंड्स हैं या पार्क्स हैं उन पे भी काफ़ी अच्छा ध्यान दिया है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अगर मैं आपको ब्रीफ में बताऊं तो द एंटायर कॉलोनीज, एंटायर टाउनशिप इज wall boundary surrounded. It is having RFID gates, 24/7 surveillance is there, and we have kept 4 to 5 parks in the first phase, and that parks would contain a skating ring, cricket pitch, and the basketball ground is there, and also that pickleball court is there, and there is a Zen garden. There is a garden for the
senior residents, and there is a pathway to walk, and 24/7 uninterrupted power supply, underground wirings, underground water fittings, and the most important fact, we have kept greenery the main attraction. We have kept plants in the plants alongside the road as per Vastu. Like if there are 10 to 15 roads, each road will have different colors of plants and flowers as per the Vastu, and that's the most unique concept we are bringing to the city. आई थिंक ये चीज़ें मेरे से भी मिसिंग हो जाती है अगर मैं वीडियो में बोलता, बट आपने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि मुझे मौका मिलता रहता है मल्टीपल सोसाइटीज़ में विजिट करने का, चाहे वो मोहाली हो, जीरकपुर हो, या कोई भी रियल एस्टेट की ऐसी डेवलपमेंट देखता हूँ तो हमने तो जज ही करना होता है भी कौन सी कॉलोनी अच्छी बनी है। बट आपने बहुत अच्छी तरह इलेबोरेट कर दिया इसको। नहीं तो मल्टीपल बिल्डर्स ना ये चीज़ें मिसिंग कर जाते हैं, ये सारी चीज़ें, बट आपने नहीं, हमने क्या किया, जो चंडीगढ़ का मेन कोर थीम है, जो इनके द प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ चंडीगढ़ मिस्टर ली कॉर्बुसियर जी जो उन्होंने डिज़ाइन किया था, तो उन्होंने मध्य मार्ग में कौन से प्लांट्स होने चाहिए, हिमालय मार्ग पे क्या होना चाहिए, उसके पीछे दिस अ ह्यूज स्कीम ऑफ थिंग्स। ये कोई आर्बिट्ररी थॉट नहीं था। तो हमने वही, वी वेंट टू लाइब्रेरीज, वी वेंट टू आर्काइव्स, हमने वो सारी इन्फो पिक करके तो उसी का ही एक प्रोटोटाइप यहाँ बनाने की कोशिश की है कि अब चंडीगढ़ हर किसी के लिए रहना अफोर्डेबल नहीं रहा। चंडीगढ़ इज रनिंग एट 4 to 5 lakhs पर स्क्वायर यार्ड। तो हम कैसे वो उस वैसे डिलीवरी, वैसी चीज़ें कुराली में कर सकते हैं, वो हमारा एक इनिशिएटिव का हमने एक प्रयास किया इसमें। बहुत ही अच्छा। ये सुन के तो आई थिंक सभी को अच्छा लगेगा भी उसी थीम के साथ हम ये And चीज़ one thing को रेडी more, करने जा one रहे हैं। thing more also, Gavanji, we are trying to keep the facade uniform so that whenever you are traveling in a lane, in an alley, आपको एक वो villas type look आए, like we see it in Europe। ऐसा नहीं किसी ने घर कितना एक्सटेंड कर रखा है बाहर की तरफ, किसी का कैसा कर रखा है। एंड मोर ओवर वी विल आल्सो गिव यू द इंटरनल लेआउट्स एज पर वास्तु, सो दैट whoever is coming to live there, उनकी लाइफ में उनके रिलेशनशिप्स, उनका फाइनेंस, उनका ओवरऑल वेलबींग, उनका हेल्थ, वो सब परफेक्ट रहे। क्योंकि वी लिटरली believe in the fact that if the space is aligned as per Mahavastu, then growth is bound to happen. ये तो आई थिंक सभी के लिए 100% आपकी तरफ से देने वाला है कि आपने वहाँ वास्तु के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें करवाई है, और लोगों को इसका बेनिफिट भी 101% जरूर होगा। सर, जैसे आप खुद पंजाब के मालवा रीजन से बिलोंग करते हैं, मानसा से, तो काफी सारे मानसा बेल्ट के लोग या बरनाला, बठिंडा, उस साइड के लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है, जीरकपुर, बनूड़ या ये वाली बेल्ट में। आपका क्या थॉट आया अभी कुराली वाली साइड में जाके लैंड को या लैंड बैंक इकट्ठा करने का, वहाँ पे प्रोजेक्ट को डेवलप करने का? ये थॉट आपका कहाँ से? नहीं तो मोस्टली लोग तो वहीं ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, काफी इन्वेस्टमेंट लोगों ने की भी है वहाँ पे ये वाली बेल्ट में, बट आपको ये थॉट कहाँ से आया? बिल्कुल ठीक है। इसमें क्या है गगन जी, आप पूछ रहे हो कि यस आई बिलोंग टू द प्राउड मालवा बेल्ट ऑफ पंजाब एंड व्हाई आई हैवंट डेवलप्ड a registration project yet in Banur or Rajpura is because Banur, Rajpura, चंडीगढ़ से जब हम लोगों ने काम करना है मोहाली से, it takes 30 to 40 minutes और वहाँ पे वैसी कनेक्टिविटी नहीं है। It's a wonderful spot for investments, especially the industries or the warehousings. Kurali is 10 to 15 minutes from चंडीगढ़। कुराली तो सैंडविच हो गया। अभी तो लेटेस्ट विद द न्यू मास्टर प्लान, अभी तो न्यू चंडीगढ़ और कुराली के बीच का जो 4 किलोमीटर का डिफरेंस था, आर प्रोजेक्ट इज आई थिंक 4 to 5 kilometers फ्रॉम इको सिटी 3। इको सिटी 3 में द प्राइस इज आई थिंक एट 1.5 lakhs to 2 lakhs per station approximate, right? And 4 kilometers is Kurali. Kurali is at 50K per square yard. We are yet to start the sales, but those projects which are under sale. So वो 4 किलोमीटर का गैप समझ में आता है जिसको रहना है। Our goal was to make product
which is eventually useful for the end user. राजपुरा और बनूड़ को अभी ऑक्यूपाई होने में वहाँ अभी टाइम है जी। तो it will take another 5 to 7 years to reach development in बनूड़ and राजपुरा. तो वही ऐसे टोल्ड यू कि हमें तो था कि जिनको ये घर चाहिए, जो ऑडियंस है, जो हमारा क्लाइंटेल है, वो हिमाचल से है, वो JNK से है, वो चंडीगढ़ से है, वो मोहाली से है, उनको घर यूज करना है. वी डोंट वांट टू रोटेट फंड्स फॉर 3 years 4 years 5 years कि फंड्स ही घूमते रहे, पता लगे यूजर नहीं आया. यू विल सी देयर आर 5 to 10 projects in the Banur to Rajpura belt. बट वहाँ पे लोग नहीं आए और किसी ने भी कोई बहुत ज्यादा घर अभी बने देख भी नहीं रहे हैं नहीं. क्योंकि ऑलरेडी सोसाइटीज काफी जो है बिल्डर्स ने पोजीशन दे भी दी. हाँ, अभी लोग छत वाली लाइट्स तक पहुंचे हैं. यू विल से कि छत वाली लाइट्स तक लोग आ गए हैं. तो अभी छत वाली लाइट से टोल तक पहुंचने में इट विल टेक 2-3 years एंड देन फ्रॉम टोल टुवर्ड्स राजपुरा अगेन 2 years. बट अगर मैं देखूं तो हमारी साइड तो कुराली के बिल्कुल बीच में है, तो वो तो बिल्कुल घिरी हुई है लोगों से. हाँ, इट्स नॉट अबाउट गवर्नमेंट सिर्फ हमारी साइड. कुराली में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं यू विल सी दैट आर ऑक्युपाइड. कुराली में यस, हाँ, ये एक बड़ा ऐसा कुछ point. नहीं है कि हमारा प्रोजेक्ट भी कुछ डिफरेंट है. कुराली के जितने प्रोजेक्ट है, व्हाट आई वांट टू से इज कुराली is any day better investment and better location than Banur and Rajpura in terms of occupancy, in terms of growth, in terms of connectivity, in terms of convenience to the end user. That's it. ग्रेट. एक चीज और आपने बीच में डिस्कशन की, जो नया मास्टर प्लान आया जिसमें 78 विलेजेस आई थिंक पंजाब गवर्नमेंट ने कुराली के रेजिडेंशियल जोन में डाल दिए. Right. उसके बारे में भी थोड़ा क्लाइंट्स को जरूर एलेबोरेट करें. As I told you, basically क्या है, चंडीगढ़ जब बहुत कॉस्टली था, ये सेटल टाउन कॉन्सेप्ट होता है. जैसे अब यूरोप में भी देखो, यू गो टू US, people live in downtown, then the expansion is rapid, people started living in country homes, countrysides, they do come to downtown for work. Similarly चंडीगढ़ के सेटल टाउन्स बने, जो पंजाब टचिंग एरिया उनके लिए मोहाली, हरियाणा टचिंग के लिए बना पंचकुला. जी. फिर जब मोहाली भी बियॉन्ड रेंज हो गया तो मोहाली का सेटल टाउन बना खरड़ और पंचकुला का सेटल टाउन बना जीरकपुर. बिल्कुल. अब जीरकपुर और खरड़ दो बिल्कुल ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो बिल्कुल कोविड की तरह नॉन मैनेज्ड हैं. मतलब वो मैनेज ही नहीं हो सकती, बियॉन्ड रिपेयर हो चुका है. जी. आप वहाँ बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना भी लोगे, लेकिन जो एंट्रेंसेस हैं, एग्जिट्स हैं, मार्केट है, जो इंफ्रा है, वो इतना हॉट पॉच है, देयर इज नो अदर वे आउट. तो जीरकपुर की वो कंपनसेट करने के लिए हॉट पॉच को बनूड़ इज ग्रोइंग एंड खरड़ को हॉट पॉच करने के लिए कुराली इज कमिंग. तो कुराली इज अ सेटल टाउन टू मोहाली एंड बनूड़ इज सेटल टाउन टू मोहाली इन द सदर्न साइड and Kurali is in the western side. So both are growing together. और जो अभी आपने बोला वो 78 विलेजेस वाली बात, न्यू चंडीगढ़, एज ए टोल्ड, न्यू चंडीगढ़ से कुराली का जो 4 किलोमीटर का डिस्टेंस था, वो गवर्नमेंट को लगा कि बहुत कन्वीनियंट टू फिल है. सारी ब्यूरोक्रेसी उधर है, सारे गवर्नमेंट ऑफिस उधर हैं. अब मेड सिटी हैज कम अप, हॉस्पिटल्स आर कमिंग अप देयर, एजुकेशनल जोन इज कमिंग अप देयर, IT इंडस्ट्रीज आर कमिंग अप देयर. तो वहां पे रेजिडेंसेस का बहुत बड़ा गैप था, डिमांड वर्सेस सप्लाई. दिस इज ऑल अबाउट डिमांड वर्सेस सप्लाई. तो गमाडा, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हैज रिकॉग्नाइज्ड दैट इन द कमिंग 5 years they would need huge chunk of residential sites plotting. फिर गमाडा ने वहां पे उसको मर्ज कर दिया. नाउ जस्ट इन द फ्रंट ऑफ आवर प्रोजेक्ट इन कुराली there is a 200 feet wide road going to Chandigarh. Even we even had imagined it. हमने भी इमेजिन नहीं किया था कि हमारे प्रोजेक्ट से 200 फीट की रोड चंडीगढ़ से डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी. मतलब जब भी ये मैनिफेस्ट होगा, ऑफ कोर्स इट विल टेक सम टाइम, लेट्स से 4 years 5 years, तो 5 साल में फ्रॉम कुराली टू चंडीगढ़ यू विल रीच इन 10 to 15 minutes. But this can't happen with the Banur Rajpura as of now. तभी कुराली में अभी से ही तभी कुराली में. And moreover, it is very near to
international stadium, PGI, and in the Baddi business belt, Chandigarh University is there, Rajat Bhai University is there. All the top schools, Strawberries has come up there, Bhavan Vidyalaya has come up. एग्जैक्टली You know, खाना रोटी कपड़ा मकान सब चीजें वहीं पे अवेलेबल। ग्रूम हो रही हैं, तो बस वहीं पे लोग रह रहे हैं। बहुत बढ़िया सर। जैसे कि आपने बहुत ही अच्छी तरह से इलेबोरेट किया सारी चीज़ों को लेकर, कुराली की डेवलपमेंट या न्यू चंडीगढ़ के डेवलपमेंट को लेकर, ट्राई सिटी का रियल एस्टेट या इस सारी बेल्ट के रियल एस्टेट आने वाले 5 या 10 साल का फ्यूचर आपकी नज़र में एक बिल्डर कैसे सोचता है, मैं ये भी जानना चाहूँगा। बिल्डर का क्या थॉट प्रोसेस है इन ये सारी फ्यूचर की लोकेशंस को लेकर? गगन जी, बिल्डर भी एक सिंपल बिजनेसमैन ही होता है, वो से जैसे कोई भी बिजनेसमैन देखता है कि डिमांड क्या है, उसको सप्लाई क्या करना है। मैं अगर आपने सवाल पूछा कि रियल एस्टेट का फ्यूचर हम कहाँ देखते हैं, आई वुड रादर से आई सी फ्यूचर इन ग्रीन स्पेसेस। चंडीगढ़ इज स्टिल लैकिंग ग्रीन स्पेसेस, जहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा हो, 30 to 40% ऑक्यूपेंसी हो, 60% ग्रीन पार्क्स हो। In that sense, Panchkula I see a bright future. Okay. It's in the foothills of Himalayas. Panchkula extension is coming up. Panchkula is a great future. And in respect of industry and the logistics, Rajpura, वैसे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी में कंसीडर की है। ड्राई पोर्ट इज कमिंग अप, सो द एंटायर लॉजिस्टिक्स ऑफ दीज 5 states will be governed from Rajpura only. And even I have got to know from the government people that in respect of defense also, defense का movement, because down the line we see POK and all such things, so defense की भी जितनी movement है वो Rajpura में grounds are coming up. So industry logistics Rajpura side बहुत groom होएगा. Of course to support such industrialization there would be huge need of residency as well, and all the good builders are coming up there as well. And yes, Kurali, आप यकीन मानिए, in the coming 5 years you will see, or maybe in the 10 years, कुराली में सेक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, सेक्टर्स बनेंगे। कुराली is touching New Chandigarh, Yes. you know, so it would be just not merged in New Chandigarh, right? So कुराली बड़ा फ्यूचर है। हिमाचल I see lot of future, because अगर चंडीगढ़ जब एक कनाल का हाउस 50 CR टच करने लग गया, पंचकुला में करने लग गया, तो 10 CR 15 CR में विलास अवेलेबल है वानावर ड्राइव पे, एंड पीपल विल स्टार्ट लिविंग देयर एंड विल कम डाउन टू वर्क हियर इन चंडीगढ़ और मोहाली। Great. मुझे ये लगता है। एज ए यंग एंटरप्रेन्योर आप बहुत ज़्यादा नॉलेज रखती हो। आई थिंक आपकी और मेरी एज भी सेम है, ठीक है। एज एज ए यंगस्टर हम रियल एस्टेट को भी बहुत अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं काफ़ी टाइम से। यंग जनरेशन को जो रियल एस्टेट में नया आना चाहती है, जो या जो मार्केट में स्ट्रगल कर रही है, उनके बारे में कुछ अगर आप कोई सजेशन या कोई कुछ ऐसा थॉट आप दे सकें जो उनको कुछ फ़ायदा मिल सके, क्योंकि यंग जनरेशन को ज़रूर मैसेज दें इस वीडियो में आप जो देख रहे हैं, क्योंकि यंग जनरेशन आजकल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए, बट वो इन्वेस्ट चाहे स्टॉक में कर रही है कोई बड़ी रियल एस्टेट कंपनीज का, या वो ऑन ग्राउंड जो जैसे हम रजिस्ट्री करवाते हैं इन जैसी चीज़ों में इन्वेस्ट करें, या जो रियल एस्टेट करना चाहते हैं उनके बारे में आप ज़रूर बताएं अपने, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं सिर्फ आपसे पूछ सकता हूँ, इतनी कम एज के डेवलपर से मैं पहले मिला नहीं हूँ। ऐसा नहीं है डियर, आपने ना 3-4 सवाल किए, मैं थोड़ा आपने एक उसका कल्चर एंगल पकड़ा, एक फाइनेंस एंगल पकड़ा, एक इकोनॉमी पकड़ी और एक रियल एस्टेट। आई वुड क्लब अप माय आंसर इन ऑल दिस एस्पेक्ट्स इन वन बेसिक स्ट्रक्चर कि रियल एस्टेट मैंडेटरी हो चुका है। उसका रीजन है कंट्रीज एट इन्फ्लेशन ऑफ 8 to 9% पर ईयर। Yes. हम हर साल 8 से 9% हर चीज़ महंगी हो जाती है। आज मेरी इनकम 1 लाख रुपया महीना है, तो अगले साल मेरी जो इनकम है वो तो हो जाएगी 5 to 7% एप्रिशिएट, 1,05,000 हो गया, मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। जो सामान आज 1 लाख रुपए का आता था, एक साल बाद वो सामान भी
1,08,000 का हो जाता है। जी अब when it comes to real estate is growing at a pace of 25 to 30%. exactly. अब आज मुझे जब घर लेना था, घर 1 CR का था, अगले साल वो घर 1,30,00,000 का हो गया। मेरी इनकम और एक्सपेंसेस तो सेम है, तो धीरे धीरे हो क्या रहा है, एक कनाल वाला 300 गज में आ रहा है, 300 गज वाला 200 गज में, 200 150, फिर से अपार्टमेंट से छोटा घर, देन रेंट्स। तो अगर हम रियल स्टेट नहीं करेंगे किसी भी डेवलपिंग नेशन में, बी इट इन अफ्रीका, बी इट इन मैनी डेवलपिंग नेशंस, यू विल हैव टू कम अप इन रियल स्टेट एज अ कंज्यूमर और एज अ प्रोड्यूसर। नंबर 2, आपने बोला यूथ के लिए क्या मैसेज है? यूथ के लिए यही मैसेज है कि you work hard, you know the technology, you are Gen Z, you know how to connect communities. What is real estate? Real estate is basically connecting people, creating communities. How like-minded people can come together to give the country, give the society whatever is needed, right? सब लोगों को घर चाहिए, अच्छे घर चाहिए, क्लीन स्पेसेस चाहिए, अच्छी वर्क स्पेसेस चाहिए, अच्छी इंडस्ट्रियल साइट्स चाहिए, and we should not go into this buyback schemes. यूथ के लिए मेरा यही है, यू शुडंट गेट इनटू अश्योरेंसेस, बायबैक्स। ये एक बहुत बड़ा शेल गेम है जो कुछ फाइनेंसर्स ने बनाया हुआ है, वो रियल एस्टेट नहीं है, वो एक ब्लैक होल है। इवेंचुअली आपकी कैपिटल फंस जाएगी, कुछ नहीं होएगा, कैपिटल फंस जाएगी। ये शॉर्ट टर्म से बाहर आओ। इफ यू वांट टू गो फॉर शॉर्ट टर्म्स, गो फॉर द रेंटल्स, बाय योर प्रॉपर्टी, गो फॉर द रेंटल्स। अगर आपको साइक्लिक रिटर्न चाहिए, अगर आपको एसेट क्रिएशन करना है, गो फॉर द लैंड्स। अगर आपको ट्रेडिंग करना है, गो फॉर दोज काइंड ऑफ प्लॉटिंग, दोज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स जिसमें अभी 2-3 साल का पेमेंट प्लान है। बट आई sincerely request, don't go for the short returns, don't go for the ब्याज वाला गेम। ये सब एक ट्रैप है, शेल है। इवेंचुअली आज तक कोई इस गेम में आगे पहुंचा नहीं है। यू हैव 100 एग्जांपल्स टू सी इन एवरी सिटी। आई डोंट वांट टू कॉल द नेम्स, यू विल सी। हमारे शहर में भी जो 10 साल 15 साल पहले रियल एस्टेट कर रहे थे, अब चेक करो क्या वो बिल्डर भी आज हैं क्या? तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि जो उनको पता था उससे हमें ज़्यादा पता है, गुड रादर से हमें बहुत कम पता है। दे वर मोर एंटरप्राइजिंग, दे हैड सीन मोर टफ टाइम्स, दे हैड वर्कड विदाउट, when master plans were not clear, they were more laborious than us. But what they indulged into later on is they did a war level buying. जब हम रियल एस्टेट में एक्स्ट्रा इज लेस, यहाँ पे उतना ही लैंड चंक बाय करो, उतना ही सामान बाय करो जितना आप डेवलप करके डिलीवर कर सकते हो। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द पीपल टू वर्क सिंसियरली विद दोज डेवलपर्स जो डिलीवरीज दे रहे हैं, जिनकी लैंड्स उनके हाथ में हैं, जिनके अप्रूवल्स आए हुए हैं। इट जस्ट कॉस्ट नथिंग, 10 रुपये लगते हैं फर्स्ट सेंटर में। अब तो फर्स्ट सेंटर में जाना पड़ता है, यू गेट ऑनलाइन। जहाँ भी पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, आस्क द बिल्डर, आस्क द financier, ask the promoter, where is the registry, where is the approval? Go and check if all approvals are there, everything is there. फिर जहाँ पे कैपिटल सेफ है वहाँ पे ग्रोथ आनी है, और जहाँ पे कैपिटल सेफ नहीं है वहाँ पे ग्रोथ आएगी नहीं। दिस इज द हार्ड फैक्ट विच विल हैव टू अग्री। आज कर लो या बाद में कर लो, दैट्स माई मैसेज फॉर द यूथ। आई थिंक इससे ज्यादा अच्छा मैसेज मैं भी नहीं दे सकता था। या वेरी ब्लंट, आई एम नोन फॉर बीइंग ब्लंट। मैं ऐसी कोई आपसे गोलमोल बात करने में मेरा कुछ वो नहीं है। कुछ लोग बल्कि देख रहे होंगे, सब दोस्त हैं, सोच रहे होंगे कि शायद हमें कह रहे हैं। नहीं, मेरा किसी को व्यक्ति विशेष के साथ कुछ नहीं है। बस मैं ये चाहता हूँ सब अच्छे से रहें, सुरक्षित रहें। बिल्कुल क्योंकि इसमें कैपिटल जुड़ा हुआ है और ये हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हम भी वही चीज को आगे लेके जाएं जो बिल्कुल एक्यूरेट और परफेक्ट हो और लोगों के हित में हो। सो थैंक यू सो मच मिस्टर कृष्ण गर्ग जी, आपका इतना कीमती समय देने के लिए। और आपके जो विचार हैं, आई थिंक जो आपने चीजें शेयर की हैं वो सभी व्यूअर्स के काम आएंगी और यंग जनरेशन पे भी काम आएंगी। थैंक यू जी, थैंक यू जी, आपने टाइम निकाला। थैंक यू ऑल व्यूअर्स कि आपने टाइम निकाल के हमें सुना। थैंक यू सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीक।